students, our next chapter is chapter 3rd, electrochemistry. It involves electricity. As it is clear from the name also, electrochemistry, chemistry in electricity. Involvement of electricity in chemistry. Students, there are two main roles of electricity in chemistry. Role first. In chemistry, either chemical energy is converted into electrical energy or electrical energy is converted into chemical energy. Chemical energy means energy involved in chemicals. When a reaction, a chemical reaction occurs, there is involvement of chemical energy. That chemical energy which is involved in a chemical reaction can be converted into electrical energy. This is first branch of electrochemistry. This process, yani conversion of a chemical reaction, energy involved in a chemical reaction into electrical energy, this process is carried out in a cell known as electrochemical cell. Where this process occurs, that cell where this process occurs is known as electrochemical cell. And here electricity, with the help of electricity, we can change we can carry out a non-spontaneous reaction. With the help of electricity, एक chemical reaction हम करवा रहे हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी या बिना एक्सटर्नल एनर्जी के नहीं हो पा रही है, यानी दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो खुद से नहीं होती हैं. स्पॉन्टेनियस तो जैसे ही रिएक्टेंट मिक्स हुए दे अकर ऑन इट्स ओन, बट नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से नहीं हो रही है, ऐसे प्रोसेस होते हैं. देन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाना. फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस प्रोसेस अकर in a cell known as electrolytic cell, and the process is known as electrolysis. lysis माने ब्रेकिंग. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड की ब्रेकिंग जो अपने आप ब्रेक नहीं हो रहा था, है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये काम, ये प्रोसेस जिस सेल में कराते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना. वी विल डिस्कस बोथ वन बाय वन इन दिस चैप्टर. नाउ एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस, molten NaCl, है ना, which is very stable compound. Only with the help of electricity we can break it into sodium and chlorine. वापस इस कंपाउंड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना, इट इज़ नॉट ईजी. Only with the help of electricity we can change this compound into its constituent elements. So this is called electrolysis. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से लिसिस कर दी गई, ब्रेकिंग कर दी गई, and this process is carried out in a cell known as electrolytic cell, है ना. We will discuss this also in this chapter. Now come to this cell. Name of this cell is, where this process occur, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम डेली लाइफ में जो बैटरीज देखते हैं, है ना, टॉर्च में जो बैटरी देखते हैं, इन्वर्टर की बैटरी, वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है जो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से हो रही है, और उस रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. टॉर्च के सेल में अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और बल्ब ग्लो करने लग गया. ठीक है, ऐसे ही इन्हें अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझेंगे. उससे पहले इसका एक एग्जाम्पल. तो वी ऑल नो this reaction, we are familiar with this reaction, that
Zn plus CuSO4. Zinc displaces copper because it is less active metal and form compound with sulfate ion. Zinc sulfate and copper अलग हो जाता है. ठीक है. Why it occurs? We know that zinc is more active, so it displaces copper metal and zinc sulfate and copper बन जाता है. दोनों ही तरफ इन्वॉल्व कॉमन नेगेटिव आयंस को अगर हम हटा दें और आयनिक इक्वेशन लिखें तो आयनिक इक्वेशन में सिर्फ वो आयंस लिखे जाते हैं जो दोनों तरफ कॉमन नहीं है. तो जिंक ये तो आयन ही नहीं है, इसे लिखेंगे कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन. ये दोनों कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन और सल्फेट आयन है. कॉपर पे क्या चार्ज है +2 और सल्फेट -2. इस साइड Zn +2 और -2 और कॉपर पे 0 चार्ज. तो हमें यहाँ से Cu+2 ले लिया है. सल्फेट SO4 -2 दोनों तरफ है तो इसे क्या करेंगे, कॉमन है, हटा दिया. अभी जिंक +2 इधर है, यहाँ जिंक +2 नहीं है और Cu इधर है, इधर Cu नहीं है, Cu+2 है. सो दिस इज आयनिक इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में बदलना हम लोगों ने 11th में भी सीख लिया था. नाउ सी दिस रिएक्शन. Zn क्या कर रहा है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Zn+2. हाउ कैन इट कन्वर्ट? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. 0 से +2 हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या रह गया, 2+, है ना. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. Cu+2 ने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन. 1 मोल ऑफ Cu 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का 2- चार्ज क्या बन गया, यहाँ पर 0 आ गया. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस. यानी दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन बोथ प्रोसेस अकर्स. इस कंप्लीट रिएक्शन को अब हम हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं और तब देखेंगे हाफ रिएक्शन कौन सी हुई, कन्वर्जन ऑफ Zn इंटू Zn+2 बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड सेकेंड हाफ रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ Cu+2 इंटू Cu बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये हाफ रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है. दोनों ही हाफ रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिएक्टेंट और रिएक्टेंट ये आ गया, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ये आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये सेल रिएक्शन मिल जाएगी. ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक्सपेरिमेंटली अगर देखें तो आपने 10th क्लास में भी ये किया होगा. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर इफ जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, are added in this copper sulfate solution. After some time what happens? कॉपर मेटल जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है एक रेडिश ब्राउन मेटल और इसका कलर क्या हो जाता है, वाइट, जो कि पहले क्या था, ब्लू. यानी यहाँ पर कॉपर ख़त्म हो गया और हमें पता है क्या हुआ था, Cu+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में. और Cu क्या होता है, रेडिश ब्राउन, तो वो डिपॉजिट हो जाता है. और जिंक है यहाँ पर हमने क्या लिया था, जिंक, तो जिंक किस में बदल गया, Zn+2 में. आयंस किस में रहते हैं, सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या आ गया, Zn+2. ठीक है, और कॉपर Cu+2 जो था वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया. ऐसा हो रहा था बच्चों, है ना, इस तरह से हम ऑब्जर्व करते थे. नाउ व्हाट हैपन्स इफ जिंक, इसमें क्या हुआ, जिंक ने Zn+2 में कन्वर्ट हो गया और Cu+2 Cu में कन्वर्ट हुआ ना. जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू Zn+2. ये इलेक्ट्रॉन कॉपर आयंस ने गेन कर लिए. अगर हम Cu+2 आयंस को अलग रख दें और जिंक को अलग रख दें और जिंक जो लूज़ करेगा उन्हें वायर की हेल्प से Cu+2 तक पहुंचा दें. अगर हम इसी रिएक्शन में जिंक को बच्चों अलग रख दें और कॉपर सल्फेट
अलग रख दें और ये जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसे वायर के थ्रू कॉपर तक पहुंचाएं, कॉपर आयंस तक। प्रॉपर वे से कैसे पहुंचाते हैं अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो अब क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू वायर एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा एम जो हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। वंस अगेन सेम रिएक्शन जो हम 10th में करते थे, जिंक में कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिया, आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर Cu+2 की वजह से जो होता था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि Cu+2 Cu में बदल गए थे और जिंक+2 में। ये कैसे हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, उन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन को इसने गेन करा। अब अगर हम CuSO4 और Zn को अलग अलग रख पाएँ और ये लूज़ करेगा और ये गेन करेगा तो उसको वायर से कनेक्ट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुँचाएँ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। यहीं से स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ अब देखते हैं इसी एग्जाम्पल से कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस सेल? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। दिस इज हाफ सेल एंड दिस इज सेकेंड हाफ सेल. One half cell reactions occur in this cell, in this half cell. It is also known as electrode. एंड सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन यहाँ होगी. हमारी एक हाफ सेल रिएक्शन क्या थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाफ सेल रिएक्शन ये, और यहाँ पे होने वाली हाफ सेल रिएक्शन जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए. ठीक है, तो ये दो हाफ सेल से मिलके बनती है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. हम लोगों ने कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इस समय एग्जांपल लिया है? जिंक एंड कॉपर का. तो देखते हैं कैसे ये हाफ सेल कैसे बनती है. जिंक आयंस होने चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन ले लेते हैं. हम लोगों ने क्या लिया है? जिंक सल्फेट सॉलेबल इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4. यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? जिंक आयंस भी होंगे और सल्फेट आयंस भी होंगे. ठीक है, हम जिंक नाइट्रेट भी ले सकते हैं. जिसका हाफ सेल बनाना है उसके आयंस होने चाहिए. एंड अ रॉड ऑफ जिंक इज डिप्ड इन इट. ठीक है, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली हो जाए. तो रॉड ऑफ जिंक यहाँ पर ले ली गई है. ये हमारा, ये दोनों चीज़ें मिलके हमारा क्या हो जाता है? जिंक इलेक्ट्रोड या जिंक हाफ सेल. ठीक है, अभी कॉपर इलेक्ट्रोड या कॉपर हाफ सेल कैसे करेंगे? कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर रॉड ले ली है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया है, उसमें इस रॉड को रख दिया है. दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, नाउ अब कैसे सेटअप करते हैं देखिए. वायर के थ्रू इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया है और कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसको मेज़र कर लेंगे बाद में. और इसे अब एक तरफ से ये हो गया है. अगर हम इस सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी. तो हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट कर दिया है और एक यू ट्यूब लगा दी है. इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज. दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है. ठीक है, क्या पर्पस है इसका? सबसे पहला पर्पस तो यही, टू कनेक्ट टू सॉल्ट सॉल्यूशन और टू कंप्लीट द सर्किट. सर्किट को कंप्लीट कर दिया है इसने. ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन एक आयंस का कम या ज़्यादा होगा और दूसरे आयंस का कम या ज़्यादा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों यहाँ भी है और यहाँ भी, रिएक्शन में दोनों का कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे यहाँ से आकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी इसे. पहले ये देख लेते हैं हाफ इलेक्ट्रोड, हाफ सेल. ये हाफ सेल, एक इलेक्ट्रोड जिंक, एक कॉपर, दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा? एक हाफ इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोड जानते हैं एनोड एंड कैथोड होते हैं. ये एनोडिक हाफ सेल है और ये एनोड कवर कर रहा है जिंक. एनोड किसे कहते हैं? एनोड जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं. तो जिंक लूज़ कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन लूज़ कौन कर रहा है? जिंक. तो जिंक इज़ एनोड हेयर. हमेशा एनोडिक हाफ सेल को लेफ्ट साइड बनाते हैं और कैथोडिक को राइट साइड. अगर जिंक नहीं कर रहा होता, जिंक कैथोड का वर्क कर रहा होता,
तो उसको उधर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, एनोड क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है जो मेटल, तो जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, सो इट इज़ एनोड। और एनोड यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ही ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना ये, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर ज़्यादा होंगे, फिर यहाँ से इधर जाएंगे, तो इट इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+2 आयंस यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ आएंगे उनको गेन कर लेंगे और Cu में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये Cu+2 आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे, Cu में बदलेंगे तो Cu तो सॉल्युबल नहीं है, डिपॉजिट होने लगेगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn+, यानी ये जिंक रॉड धीरे धीरे क्या हो रही है, Zn+2 में कन्वर्ट होती जा रही है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। Zn+2 कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इधर, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+2 उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, गेन करने के बाद किस में बदल रहे हैं, Cu में, तो Cu यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे हम देखेंगे ये रॉड क्या हो रही है, थिक, और ये रॉड क्या हो रही है, थिन, क्योंकि जिंक तो डिसॉल्व होता जा रहा है। Zn+2 में जैसे ही बदलेगा Zn+2 तो सॉल्यूशन में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब Cu+2 यहाँ से यहाँ जा रहे हैं डिपॉजिट, तो यहाँ पे कॉपर आयंस कम हो रहे हैं ना, सल्फेट तो उतना ही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, आते जा रहे हैं, है ना, सल्फेट तो उतने ही है, तो यहाँ पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन इधर चले गए हैं, तो यहाँ से पॉजिटिव आयन जा रहे हैं तो नेगेटिव आयंस उतने ही है, तो पॉजिटिव आयन चले जाएंगे तो नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, तो शॉर्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयन उसको बैलेंस करने के लिए, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाएंगे, अदरवाइज रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये शॉर्ट ब्रिज का काम होता है। यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे कुछ, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे कुछ सॉल्ट्स जेली में, अगर जेली होती है उसमें एक पेस्ट जैसा बना के फिल करते हैं और वो एज़ पर रिक्वायरमेंट यहाँ आ जाते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इस इलेक्ट्रोड को देख लेते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना बच्चों, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन प्रोसेस, और जहाँ रिडक्शन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड, कौन सा, कैथोड। और यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी इस इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा कैथोड राइट साइड और एनोड लेफ्ट साइड बनाते हैं। ठीक, अब इस सेल का रिप्रेजेंटेशन हम बार बार अपने क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इलेक्ट्रिसिटी, करंट किधर फ्लो होगी, जस्ट इलेक्ट्रॉन का रिवर्स साइड फ्लो होती है ना, तो करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ये बात हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है समझ जाएंगे वो एनोड है, और रिडक्शन जहाँ हो रहा है वो कैथोड है। यहाँ के चेंजेस एक बार फिर से देख लीजिए, जो रॉड जिंक थी ये Zn+2 में बदल रही है, यानी धीरे धीरे रॉड क्या हो रही है, थिन हो रही है, और यहाँ पे Zn+2 पहले से भी थे और आते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो निकले वो कहाँ जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ से Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ से क्या हो रहा है, Cu में बदल रहे हैं, और यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं। ये रॉड क्या हो रही है, धीरे धीरे थिक हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, जिसको बैलेंस करने के लिए शॉर्ट ब्रिज से आयंस आ जाते हैं। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं हम। क्वेश्चन में हमें बार बार ये सेल बना के नहीं दिखा जाएगा, इसको शॉर्टली रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले दो लाइंस जो शॉर्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। इसके लेफ़्ट साइड जैसे मैंने अभी बोला एनोड और राइट साइड कैथोड बनाएंगे। अब एनोड में क्या चेंज हुआ है देखिए, Zn स्पीशीज़ Zn+2 में कन्वर्ट हो गई है, तो Zn
पहले लिखेंगे Zn+2 बाद में। 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये क्या दिखाया गया है, ऑक्सीडेशन। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो आप Zn से Zn+2 दिखाएंगे, यानी 0 से +2 ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखाएंगे, है ना। और कैथोड में Cu+2 पहले और फिर Cu, क्यों, क्योंकि Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, तो पहले Cu+2 फिर Cu, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। ये एनोड हमेशा लेफ़्ट साइड, कैथोड हमेशा राइट साइड। अगर ये लिखा हो तो रिप्रेजेंटेशन आप अपने आप समझ जाएंगे, ये एनोड है ये कैथोड। इसको देख के सेल रिएक्शन, यहाँ पे तो जिंक और कॉपर है, कोई भी और दूसरा हो सकता है, तो आप कैसे सेल रिएक्शन लिखोगे, आप समझ जाओगे ये रिएक्टेंट है जिंक, और जिंक किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट कौन सा, Zinc+2 में। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, Cu प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जिंक और कॉपर का, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डैनियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डैनियल सेल। ऐसे ही बहुत सारे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम गैल्वेनिक सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी। एक केमिकल रिएक्शन से, इस केमिकल रिएक्शन से जो नॉर्मली हो रही थी, दोनों को अलग अलग रखा और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ठीक है बच्चों। अब हम कुछ और सेल्स भी देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या कोई और सेल भी हो सकती है ना। अगर हम कॉपर और सिल्वर ले लें, मान लीजिए हम आपसे कहें कि हम कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कॉपर इज़ मोर एक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर क्या करेगी, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगी, और कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, इस इक्वेशन को बैलेंस कर ले तो ऐसे ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये रिएक्शन कॉपर इज़ मोर एक्टिव देन सिल्वर, अगर हम इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना चाहें तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, Cu किस में बदल रहा है, Cu+2 में, और Ag+ किस में बदल रहा है, Ag में। अगर हम दोनों साइड से कॉमन आयंस नाइट्रेट हटा दें तो हम अपनी आयनिक रिएक्शन इसको देखकर कैसे लिखेंगे, जैसे अभी पहले लिखा था, कॉपर मेटल है, फिर कौन से आयन से यहाँ पर Ag+ और NO3-, तो Ag+ आयन लिख लेते हैं, Cu+2 आयन, NO3- दोनों तरफ हैं, इसको कैंसिल आउट कर दिया, और सिल्वर, ये चेंज हो रहा है ना यहाँ पर। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर किसकी बढ़ रही है, कॉपर की, तो कॉपर ऑक्सीडेशन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तभी तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, है ना। और सिल्वर क्या कर रहा है, अगर हम सिल्वर को देखें यहाँ पर, तो सिल्वर क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, है ना। यहाँ पर तो कॉपर रिडक्शन कर रहा था अभी, और अभी यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम इससे सेल बनाएं तो आप बताइए एनोड आप किससे बनाओगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके, है ना। तब हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एनोड इधर रखेंगे, एनोड कौन सा है, कॉपर, तो हम कॉपर किस में बदल रहा है, Cu से Cu+2, तो हम Cu से Cu+2 कर देंगे। फिर कैथोड इस साइड रखते हैं, कैथोड किसे बनाते हैं, जहाँ रिडक्शन होता है, चेक कर लीजिए रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड पर, है ना। तो रिडक्शन में रिएक्टेंट Ag+ और प्रोडक्ट क्या, Ag, +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सेल रिएक्शन हो गई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी हम बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं, जिसमें एक पहले यहाँ पे कॉपर कैथोड एनोड, और वहाँ पे जिंक के साथ एनोड का वर्क कर रहा था।
तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि वाई किस वन मेटल कैन एक्ट एज कैथोड और एनोड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। ठीक है, कौन सी मेटल एनोड बन जाती है, कौन सी मेटल कैथोड बन जाएगी, या हम यहाँ पे कॉपर को इधर और जिंक को इधर कनेक्ट कर दें तो क्या सेल वर्क करेगी, है ना। अगर हम कॉपर को इधर और जिंक को इधर कर दें, यानी ये इस डायरेक्शन में रिएक्शन को देखें, तो क्या रिएक्शन होगी, Cu कैन नॉट डिस्प्लेस Zn बिकॉज Cu इज़ लेस एक्टिव ना, तो हमारी रिएक्शन नहीं होगी। यानी कॉपर के साथ अगर जिंक है तो इसको ही कैथोड बनना है, क्योंकि यही रिडक्शन करेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, और अगर कॉपर के साथ सिल्वर ले लिया तो सिल्वर रिडक्शन करने की ज़्यादा टेंडेंसी है और कॉपर की कम। इसी पॉइंट को, इसी क्वेश्चन को मैं अब यहीं छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से कि क्यों एक मेटल, ये बात किस पे डिपेंड करती है कि एक मेटल कैथोड होगी या एनोड होगी, ये डिपेंड करती है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। तो हम लोग अब आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।